Good morning, students. Today we start theorem that R be an integral domain with unity. If D1 is GCD of A and B in R, then D2 is also GCD of A and B if and only if D1 and D2 are associates. क्या कह रहा है वो यहाँ कि D1 अगर GCD है A और B का R में, तो D2 भी GCD होगा अगर if and only if D1 and D2 क्या हो associates हो. हमने फर्स्ट केस में ले लिया कि D1 और D2 दोनों ही GCD है A और B के. If D1 is GCD of A and B, then D1 divides A and D1 divides B. And if D2 is GCD of A and B, then D2 divides A and D2 divides B. Now using the result, if D1 is GCD of A and B, then D1 divides D2, and similarly we can say D2 divides D1. Now from here we can say D1 and D2 are associates. Conversely, let D1 is equal to GCD of A and B and D1 and D2 are associates. Now this implies D1 is equal to UD2 where U is unity R because D1 is associate of D2. Now this implies D2 divides D1. Now we have to prove, इस केस में हमें क्या प्रूव करना है, D2 is also GCD of A and B. Also here D1 is GCD of A and B, ये given है हमें. This implies D1 divides A and D1 divides B. Therefore from both these results D2 divides A and D2 divides B. तो मीन्स यहाँ D2 जो है वो कॉमन डिवाइजर तो हो गया A और B का. अब हमें क्या दिखाना रह गया, D2 जो है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, कि अगर उसका कोई और भी डिवाइजर आ रहा है तो वो उससे छोटा है, मतलब छोटा डिवाइजर है. लेट C इज आल्सो डिवाइजर ऑफ A एंड B, देन C डिवाइड्स D1. ठीक है, बिकॉज D1 क्या है, उसका GCD है. आल्सो D1 इज इक्वल टू U D2 क्योंकि D1 इज एसोसिएट ऑफ D2. दिस इंप्लाइज D2 इज इक्वल टू U इनवर्स D1. नाउ दिस इंप्लाइज, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, D1 डिवाइड्स D2. नाउ यूजिंग 1 and 2 से हमारे पास क्या आ गया, C डिवाइड्स D2. तो D2 क्या हो गया आपका, एलसीएम हो गया, सॉरी GCD हो गया A एंड B का. ठीक है. सेकंड है आपके पास, नेक्स्ट है अ यूक्लिडियन रिंग. देखो क्या डेफिनेशन है यूक्लिडियन रिंग की. इंटीग्रल डोमेन का मतलब अ कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर is said to be a Euclidean ring or a Euclidean domain if corresponding to every non-zero element A belongs to R. अगर हम क्या असाइन कर पाए, if we can assign a non-negative integer D of A such that for all AB belongs to R where neither A0 nor B0, क्या वो D of A क्या आ जाएगा, less than equal to D of AB. Second है for all AB belongs to R with B is not equal to 0, there exists Q and R in R such that A is equal to BQ plus R where either R is 0 or D of R is less than D of B. यहाँ आप देख रहे हो जो डेफिनेशन है वो आपकी किससे मिलती जुलती है, डिवीजन एल्गोरिथम जो थी. और यहाँ हम इसको हम क्या बोलेंगे, यूक्लिडियन एल्गोरिथम, और डी को हम क्या बोलेंगे, यूक्लिडियन वैल्यूएशन ऑन आर. फर्स्ट एग्जांपल है द इंटीग्रल डोमेन z ऑफ इंटीजर्स इज एन यूक्लिडियन डोमेन. इसके लिए हम डी फंक्शन जो है खुद डिफाइन करेंगे, जो वैल्यूएशन डी है, जैसे हम मीट्रिक डिफाइन करते थे. डी ऑफ ए हमने क्या डिफाइन कर दिया, मोड ऑफ ए फॉर ए नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, ए हमने नॉन जीरो नंबर लिया तभी हम डिफाइन किया हमने. लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ z, then d of a is equal to mod of a and d of ab is equal to mod of ab, and mod of ab can be done as mod of a into mod of b. Since mod of a is less than equal to mod of a into mod of b, then this implies d of a is less than equal to d of ab. फर्स्ट कंडीशन प्रूव हो गई. सेकंड कंडीशन है लेट a and b belongs to z such that b is not equal to 0. If b is not equal to 0, then second condition there exists two integers q and r belongs to r such that प्रूव करने के लिए हम ये यूज कर रहे हैं a is equal to bq plus r where r lying between 0 and b. If b is not equal to 0, then two cases arise, either b greater than 0 or less than 0. Let b is greater than 0, then if r is not equal to 0, then r is less than b, क्योंकि r के पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा या लेस देन b होगा. अगर r 0 नहीं है तो लेस देन b है. दिस इंप्लाइज मोड r इज लेस देन मोड b, मींस d ऑफ r इज लेस देन d ऑफ b. हो गया इस केस में. सेकंड केस देखते हैं, व्हेन b इज लेस देन 0. इफ b इज लेस देन 0 तो माइनस b तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0. तो ये क्या हो गया, a इज इक्वल टू माइनस b इंटू क्यू प्लस r वेयर r लाइंग बिटवीन 0 एंड माइनस b. इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस q इंटू b प्लस r. If r is not equal to 0, then r is less than minus b. This implies mod r is less than mod b. तो यहाँ से क्या हो गया, d of r is less than d of b. मीन्स दोनों ही केसेस में आपके सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई. तो z क्या बन गया, आपका यूक्लिडियन रिंग बन गया. नेक्स्ट क्या है आपके पास,
द रिंग ऑफ Gaussian integers में z iota जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं a प्लस iota b where a and b belongs to z. ये बात क्या दिखानी है? दिस इज एन यूक्लिडियन डोमेन या यूक्लिडियन रिंग है. We know z iota is an integral domain. Now let us define a function d on non-zero elements of z iota. कैसे डिफाइन किया कि d of a plus iota b is equal to, क्या डिफाइन कर दिया हमने? मोड डिफाइन कर दिया यहाँ भी, और मोड स्क्वायर डिफाइन कर दिया, मोड का स्क्वायर. तभी ये क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर ऑल a प्लस आयोटा b बिलोंग्स टू z आयोटा. यहाँ a और b आपके क्या है? नॉन जीरो है. ऑब्वियसली d ऑफ a प्लस आयोटा b इज ग्रेटर देन जीरो, तो बाय डेफिनेशन आप देख ही रहे हो. लेट z1 एंड z2 बी टू नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ z आयोटा. हमने एलिमेंट्स ले लिए, z1 ले लिया a प्लस आयोटा b और z2 ले लिया हमने c प्लस आयोटा d. देन d ऑफ z1 कॉमा z2. अब d जिस पे जो हम लगा रहे हैं मींस d ऑफ z1 इनटू z2 इज इक्वल टू d ऑफ z1 की वैल्यू a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा d. दिस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करके सोल्व किया, ये रियल पार्ट अलग और इमेजनरी पार्ट अलग किया. d की डेफिनेशन लगाई, क्या? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर. नाउ दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर. आफ्टर सोल्विंग आ जाएगा आपके पास. तो ये आ गया d ऑफ a प्लस आयोटा b, d ऑफ c प्लस आयोटा d. और ये क्या है? दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से d ऑफ z1 z2 क्या होगा? दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या है आपका? d ऑफ z1 मींस वी कैन से d ऑफ z1 इज लेस देन इक्वल टू d ऑफ z1 z2. फर्स्ट कंडीशन हो गई सेटिस्फाई. सेकंड कंडीशन, लेट z1 एंड z2 भी कोई हमने इसके आर्बिट्ररी एलिमेंट कंसीडर कर लिए. तो z क्या हो गया आपका? z1 बाय z2 हम कंसीडर करके चल रहे हैं. तो ये हुआ आपका a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d. इसको हमने क्या किया? c माइनस आयोटा d से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया. तो जो भी नंबर आएगा उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? a प्लस आयोटा b से, जहां a और b क्या है? आपके रैशनल नंबर्स हैं. ठीक है, ऐसे आएगा ना ऊपर जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट आएगा. तो रियल पार्ट बाय डिनोमिनेटर वो a प्लस आयोटा के साथ जो आपका इमेजनरी पार्ट आएगा, जो इमेजनरी पार्ट है डिवाइडेड बाय दिस, वो हमने b से डिनोट कर दिया. एंड z इज नॉट नेसेसरली अ गॉसियन इंटीजर. z का गॉसियन इंटीजर होना जरूरी नहीं है. अब जो ये नंबर आएगा, क्योंकि जो गॉसियन इंटीजर है उसमें जो आपका a और b है वो दोनों ही क्या होने चाहिए? आपके इंटीजर होने चाहिए. ठीक है, यहाँ वो इंटीजर आए, ये कोई जरूरी नहीं है, वो रैशनल नंबर भी हो सकते हैं. नाउ चूज द इंटीजर्स नियरेस्ट टू a एंड b. अब हमने दो इंटीजर चूज करने हैं जो a और b के पास हो. फॉर एग्जांपल से मैं कहती हूँ a की वैल्यू जो आ रही है वो 1.897 आ रही है, तो इसके पास जो इंटीजर होगा वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. इस तरीके से हमने चूज करने हैं. लेट दीज इंटीजर्स बी a डैश एंड b डैश रिस्पेक्टिवली. देन मोड ऑफ a डैश इज लेस देन इक्वल टू 1/2. वो क्यों कह रहा है कि इनका मोड लेस देन इक्वल टू 1/2 क्यों है? क्योंकि जो भी नंबर है a डैश से, जैसे अभी मैंने कहा 1.8 समथिंग है, तो माइनस, अब एक पहली बात तो ये a बड़ा है या a डैश हम ये जज नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि अगर a की वैल्यू 1.8 समथिंग है तो a डैश हो गया 2, और अगर a की वैल्यू आपके पास 1.2 समथिंग है तो a डैश आपका क्या हो गया? 1 हो गया. तो इसलिए हमने यहाँ मोड कंसीडर किया है, लेकिन उसका जो मोड होगा, मोड प्लस डिफरेंस जो है वो क्या होगा? लेस देन इक्वल टू हाफ होगा, है ना. हाफ से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1.5, मतलब जो डिफरेंस है, क्योंकि अगर वो 1.5 है तो उस केस में हम 1 या 2, हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि जो हम इंटीजर चूज करें वो 1 या 2 ले सकते हैं. तो इस केस में डिफरेंस हमारा हाफ आ रहा है. लेकिन जैसे वो 1.5 से एक्सीड कर जाता है तो हम उसके लिए इंटीजर जो चूज करेंगे वो 2 चूज करेंगे, तो उनका डिफरेंस लेस देन हाफ हुआ. ऐसे ही अगर आपका जो रैशनल नंबर है वो 1.5 से लेस है, से 1.4 समथिंग है, तो इस केस में जो हम उसके नियरेस्ट इंटीजर चूज करेंगे वो 1 चूज करेंगे. तो 1.4 समथिंग और 1 का जो डिफरेंस है वो भी लेस देन हाफ है. तभी इसने लिखा कि जो इनका ये मॉडुलस डिफरेंस है ये लेस देन इक्वल टू हाफ है. लेट z डैश, अब a डैश प्लस आयोटा b डैश, ये आपका क्या बन गया? एक गॉसियन इंटीजर बन गया. नाउ z इज इक्वल टू, z क्या था आपका? z1 बाय z2 इंप्लाइज, यहाँ से z1 की वैल्यू क्या आ गई? z इंटू z2. तो z1 क्या आ गया आपका? यहाँ से z डैश इंटू z2 प्लस z2 माइनस z डैश z2. कहने का मतलब ये जो टर्म है z डैश z2, ये टर्म हमने इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट की है. ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास सेकंड और थर्ड टर्म है उसको हमने कैसे कंबाइन किया है? z2 कॉमन लिया, z माइनस z डैश लिखा हुआ है. अब वो क्या कह रहा है कि z1 z2 z डैश आर गॉसियन इंटीजर्स, कि z1 भी गॉसियन इंटीजर है आपका, z2 भी आपका गॉसियन इंटीजर है. दोनों आपके गॉसियन इंटीजर थे z1 z2, और जो z डैश है वो भी हमने गॉसियन इंटीजर लिया है. सारे गॉसियन इंटीजर हैं. तो अगर ये गॉसियन इंटीजर है तो z माइनस z डैश इंटू z2 ये भी क्या होगा? आपका एक गॉसियन इंटीजर होगा. ठीक है, तो z माइनस z डैश इंटू z2. नाउ दिस इज इक्वल टू,
इसको हमने सोल्व किया। अब अगर ये क्वेश्चन इंटीजर है तो नाउ दिस इज इक्वल टू वैल्यू रखी हमने z की, z डैश की और z2 की वैल्यू रखे, रियल और इमेजिनरी पार्ट को हमने यहाँ सेपरेट किया हुआ है। अब इसका डी लिया, डी लेने का मतलब डी तो हम कैसे लेते हैं, जो उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और यहाँ जो इसका डी लिया वो तो क्या किससे रिप्रेजेंट कर दिया, डी ऑफ z2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस भी लेस देन इक्वल टू हाफ, ये डिफरेंस भी लेस देन इक्वल टू हाफ चल रहा है, वैल्यू रख दी डी ऑफ z2। तो ये आपके पास क्या होगा, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी जेड टू, और हाफ ऑफ डी जेड टू इज लेस देन डी जेड टू। तो हमारे पास ये क्या आ गया, डी ऑफ दिस इज लेस देन डी जेड टू। ठीक है, नाउ इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स देन, अगर वो इंटीजर्स हैं तो क्या है, z माइनस जेड डैश इंटू जेड टू इज इक्वल टू वैल्यू रखी इंटू सी प्लस आयोटा डी, और ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 0 आ गई। दिस वी हैव शोन दैट z1 इज इक्वल टू दिस, जिसको हमने इस फॉर्म में लिखा था, वेयर z डैश और z माइनस जेड डैश इंटू जेड टू ये क्या है, दोनों ही हमारे गॉसियन इंटीजर्स हैं। एंड आइदर या तो इसमें से z माइनस जेड डैश इंटू जेड टू 0 होगा, या फिर जो ये टर्म का जो d है वो हमारे पास क्या है, लेस देन d ऑफ z2 है। ठीक है, तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी दोनों केसेस में, तो हमारा zi क्या बन गया, यूक्लिडियन रिंग बन गया। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।